Assalamualaikum everyone. Welcome to Hut Talks. In our previous episode, we discussed rights in leadership and representation. Today, we move one step further from policies and discussion to implementation on the ground, because real change happens when the ideas translate into action. For this conversation, we are joined by someone who closely works with communities. Welcome, Ms. Seher Mirza. It's pleasure to have you with us today. Thank you so much, Tanya. Thank you for inviting me in today's podcast. Thank you. Seher, before we start, आप हमें अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बाय प्रोफेशन यू आर लॉयर और फिर एक डेवलपमेंट सेक्टर की एक आपकी जर्नी है, तो आप हमें उसके बारे में बताएं कि ये ट्रांजिशन का जो एक टाइम था वो कैसा रहा आपके लिए, हाउ इट वाज, इसमें पॉजिटिव क्या रहा। बीइंग अ फीमेल आई नो कि बहुत सारी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, बेशक वो ऑफिसेज में हो या कम्युनिटीज में हो या कोई भी प्रोफेशन हो। बीइंग अ फीमेल आई थिंक हमें बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन तानिया, आपने इनवाइट किया और इसमें मुझे पार्टिसिपेशन का मौका दिया। अगर मैं अपने इस जर्नी की बात करूं तो आई हैव स्टार्टेड दिस बैक इन 2010। हमारे बाबा जो हैं सोशल वर्क उनका पैशन था और मतलब मेरी और मेरी सिस्टर हम दोनों ने हमेशा बहुत क्लोजली उनके साथ इसमें काम किया। तो हमारी इंस्पिरेशन उन्हीं को देख के बनी और इसमें जो है मुझे ऑलमोस्ट कोई 15 साल हो गए हैं। हम लोग अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स थे और फिर हमने इस फील्ड में जो है काम शुरू कर दिया था। तो ये एक तरह से पैशन भी है, ड्रीम भी था कि मतलब कुछ करना है और स्पेशली ख़वातीन के लिए करना है, लड़कियों के लिए करना है। So I always worked for the women empowerment. A lot of trainings done with the communities regarding the women empowerment and women economic empowerment. So it was a lovely journey and wonderful journey. और जो बेस थी वो बाबा से ही बनी, उन्होंने ही बनाई और वहीं से शुरू हुआ ये सब। ओह वाओ, अमेजिंग। मतलब घर से ही सोशल वर्क स्टार्ट, यस, तो घर से ही एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ऐसे है। So our next question is, when heading for a field visit, what's the one thing you always carry, a notebook or resilience? I try to carry both things. Notebook helped me to document, but the resilience helped me to navigate the challenges, situation which I faced on the ground. So both are important and necessary. That's true. So we often hear the term of women empowerment in projects and development discussion. But from your experience, what does women empowerment actually look like on the ground? When we talk about the women empowerment, but today I want to add that we must talk about the women economic empowerment. But as we say कि women empowerment जो है वो क्या है या उसके लिए मतलब हम क्या कर रहे हैं या क्या होना चाहिए या क्या है ये। तो एक्चुअली जो women empowerment है that is about when she can speak for herself, when she can earn and decide and control her things. So this is the real women empowerment. अगर सिंपल इसको कहें कि वो अपने फैसले खुद करे, अगर वो अच्छा कमाना चाहती है, वो सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो वो उसका फैसला खुद करे। तो आई थिंक सो कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट ये होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपने फैसलों में वो खुद मुख्तार हो, यस, अपने फैसले वो खुद ले सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। yes, era is changed right now.
So this is very much important कि we must talk about the women economic empowerment. Yes, true. So, during your field work, have you ever experienced a moment where you thought this is exactly why we do this work? Yes, a lot of time I observed whenever I deliver a training session in a community, when a hesitant female turned to a confident participant, that's the moment when I felt that we are successful. Oh, wow, Yes. that's great. In developing programs, sometimes beneficiaries are reduced to statistics. How do you ensure that women beneficiaries are not just attendance number, but actually benefit from the program? I never focused on the turnout and the numbers, but every time I focused on the outcomes, how they participated and what they learned. Both are the things we focused, and that's why I felt कि हम जो काम कम्युनिटी में कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई खातून हैं वो आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं और फर्स्ट डे बिहेवियर उनका जो है इतना वो हेजिटेट है और बहुत ज़्यादा वो शर्मा रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन जो है डे आफ्टर टुमारो एंड द लास्ट डे in our trainings, she participated very much confidently. So that's the moment when we felt. तो जो आप बता रही हैं कि ट्रेनिंग्स में जब ख़वातीन आपके पास आती हैं ट्रेनिंग्स में, तो वो काफ़ी जब शाय होती हैं, तो वो एक जो टाइम है नेक्स्ट डे जब वो आती हैं तो दे फेल्ट कॉन्फिडेंट और वो जो कल वो एक शाइनेस होती है वो आज नहीं होती है। तो वो किस तरह से आप उनको कॉन्फिडेंट फ़ील करवाती हैं? क्या तरीका है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा-सा इसको अपना हमारा जो मेथड होता है उस पे फ़ोकस करते हैं कि वो लेक्चर बिल्कुल भी हम उन्हें डिलीवर नहीं करते, थोड़ा-सा उसको इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी रखते हैं ताकि वो लोग आए हैं और उसको सीखें। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम उसको जो है आई ऑलवेज़ ट्राइड कि कभी भी मैं कम्युनिटी में जाके लैपटॉप और स्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं उनके साथ उनकी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, जो हमारा मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियरली हम उनको बताएँ और उनको भी डे एंड पे या प्रोग्राम एंड पे उनको पता हो कि वो किस लिए यहाँ पे थी और फिर क्योंकि चीज़ें जो है क्लियर होती हैं कि वो किस लिए आए हैं, पार्टिसिपेट करें। फिर हम उन्हें इंडिविजुअली मौका देते हैं कि वो लोग बोलें, पार्टिसिपेट करें। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, ग्रुप वर्क्स होते हैं। सो दैट्स वो इन सारी चीज़ों से प्रोसेस से गुज़रते हुए वो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस हासिल कर चुकी होती हैं। दैट्स अमेजिंग बिकॉज़ मोस्टली ये होता है कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि एक एक्टिविटी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटीज़ हमने बस जल्दी-जल्दी Yes. उसको ख़त्म करना है। लेकिन दैट्स वेरी गुड कि आप उसको एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, उनकी एक-एक छोटी-छोटी चीज़ पर जो है वो तवज्जो देती है। मेरे ख़्याल से ये सबसे एक बीइंग अ फीमेल किसी फीमेल को एम्पावर करना ये एक सबसे बड़ी बात है। यस, ऐसे ही है। So our next question is, as a female project manager, have you ever faced situation where people didn't accept you to lead or make decisions? Yes, as you know, this is a male dominant society. So, in my previous experiences, from my colleagues and in different from stakeholders, I felt and faced these situations, but always handle this situation very calmly and effectively. वहाँ पे एक्चुअली मतलब हमारे जैसी जो एक तरह से एम्पावर्ड या सेंसिटाइज्ड
विमेन होती हैं उनकी जो है वो स्किल्स वहाँ पे काम आती हैं कि आपने ये सिचुएशन जो है ये तो देखे तो अगर तो मतलब हमारी ख़वातीन को तो शायद बहुत ज़्यादा डेली फेस करना पड़ती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें फिर ओनरशिप लेती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि अगर कोई यहाँ पे मेरी कोलीग्स की तरफ से जो है या फिर किसी कम्युनिटी में स्टेक होल्डर की तरफ से मुझे ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि मैं खातून हूँ और मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ या ये काम नहीं कर सकती हूँ। Then I took the ownership of that task, but I always handle the situation very calmly. ये मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कामली सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो थिंग्स टर्न्स इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो मेरे ख्याल से कि एक कम्युनिटी में आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और आप ज़्यादा वक्त कम्युनिटी में गुजारती हैं, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस जो है ना वो एक बड़ा इशू होता है बीइंग अ फीमेल। सो मेरे ख्याल Yes, वहाँ पर it's true. अगर आप अपना एंगरनेस शो करें। यस बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फील्ड फील्ड वर्क जो है हमें पेशेंस सिखाता है, रेजिलियंस सिखाता है, हमें मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है कि हमें जो है वो कल्चर्स डिफरेंट कल्चर्स जो हैं उनको जानने का सीखने का मौका मिलता है। तो ये हमें पता होता है कि फिर कौन से कल्चर में जा रहे हैं, वहाँ कौन से डूज एंड डोंट्स हैं। तो ये चीज़ें फिर हम अवेयर होते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये अगर आपके पास मौजूद हों तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर Exactly, and that's very true. People often require both empathy and authority. How do you maintain the balance while working with communities? Um, both are very much important. Hmm. Empathy builds trust, Hmm. but authority ensures the directions. Hmm. I always try to listen other persons and show my concern, Hmm. but I always remember and clear about the timelines and commitments and responsibilities. Hmm. So I think we have make a balance in both. Great. Great, because हम कल भी ये बात कर रहे थे अपनी प्रीवियस एपिसोड में कि सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी को सुनते नहीं हैं, किसी को समझते नहीं हैं, तब तक आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएँगे ठीक से। तो ऐसा ही है। हाँ, मेरे ख्याल से सुनना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So, is there one story from a woman beneficiary that has stayed with you? Yes, I have a lot of stories to share, but एक दो का ही मैं शेयर करना चाहूँगी। समटाइम ऐसे होता है कि मैं अक्सर देख रही होती हूँ कम्युनिटी में जब भी कभी मैं किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होती हूँ, तो वहाँ पे कुछ फीमेल्स ऐसी आ जाती हैं। आई थिंक सो कि मतलब उनका जो है एक माइंड होता है, ख्वाहिश होती है, दिल होता है कि हम जो है अपने लिए खुद के लिए कुछ करें। ऑल्दो दे हैव फैमिली, बच्चे, घर, सब कुछ देखना होता है, लेकिन फिर भी वो सोच रही होती हैं कि हम करें। तो अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसमें भी इसी तरह लास्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो सितंबर की बात है, आई वाज़ इन गुजरांवाला। तो एक एक खातून थी, वो मेरे पास आई, काफ़ी परेशान थी और कह रही थी कि मैम मुझे आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ख़वातीन के हवाले से जो उनकी आपने कारोबार की तरबियत की बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं इस तरह कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे ससुराल या हस्बैंड या फैमिली की तरफ से थोड़े से मतलब लाइक उनको इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, ये कुछ बैरियर्स होते हैं, आप समझ लें। तो मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करें कि कल आप अपने हस्बैंड को कहें जब आपको लेने आएँ, तो वो कोई 10-15 मिनट बैठ के यहाँ चाय पिएँ और हमसे बात करें, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही किया उसने और मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया और देन जो है हमने उन्हें चाय पिलाई
और उससे बात की और मैंने कहा कि आपकी बेगम में तो इतना टैलेंट है और ये तो बहुत कुछ कर सकती हैं और अभी भी कर रही हैं। इतना अच्छा ये होम बेस्ड अपना एक सेटअप चला रही हैं, बिज़नेस चला रही हैं। आप इनको सपोर्ट करें तो ये अच्छा काम करेंगी। देन जो है मतलब हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया। हम सारे बैठे, बातचीत की और वो भी कोई अल्लाह का बंदा था, उसने इस बात को समझ लिया और जो है उसने कहा कि लाइक ही सेड टू मी, "बाजी ठीक है, जैसे आप कह रही हैं या जैसे ये कह रही हैं वैसे ही करूँगा।" ठीक है? और उसके बाद जो है तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद मुझे उसकी कॉल आई एंड शी सेड कि मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे काफ़ी सारा वो थैंक यू बोल रही थी और काफ़ी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी कि आपकी वजह से मेरा ये एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है, बल्कि ये मैं समझती हूँ कि इसको कह सकते हैं हम इन सिंपल वर्ड के खून बढ़ाती हैं कि वाक़ई हम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं हम, दूसरों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुनाई बिकॉज़ मोस्टली जो है ये होता है कि जब ख़वातीन आती हैं ट्रेनिंग में और वहाँ पर जब उनकी फैमिलीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और फैमिलीज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता है, वहाँ पर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। दैट्स वेरी गुड कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला, उसका इम्पैक्ट जो है उनकी लाइफ में पॉजिटिव हुआ, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। So our last question is, let's complete the sentence. Justice is not a policy. Thank you so much, Tanya. It's a very much important questions. As you said, justice is not a policy. Yes, it's true. Justice is a practice, not a policy. When we design a program for women, हम उसमें फिर कुछ चीज़ें देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे जाएगा उसके ऊपर। हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं, ट्रांजिशंस की बात करते हैं। मतलब हम जो काम कर रहे होते हैं या करते हैं, तो उसको जो है इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये एक जस्ट वन टाइम एक्टिविटी ना हो, ये उसके लिए लाइफ चेंजिंग एक प्रोग्राम हो। वाओ! ठीक है? और हम उसका जो है एक पूरा प्रोग्रेस फॉलो अप कह लें, पूरा इसको जो है वो कर रहे होते हैं कि क्या इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया? सो आई थिंक सो कि इट्स अ प्रैक्टिस, ये जस्ट अ पॉलिसी नहीं है। Wow, amazing. Thank you so much, Seher, for sharing your insight and working experience with us. Until next time, stay inspired and keep supporting women who are creating change. Stay tuned for the next episode.